Yes, friends, we have done up to illustration number 4, right? Today is our second period, and today we are going to solve illustration number 5. So, ready, friends? So, we are going to start. Okay. So, I'm reading the question for you. So, just listen carefully. Shiv and Shankar are the partners of a firm, sharing the profit and loss in equal proportion. Equal means, that is in 1 is to 1. Two partners are there. If three partners are there, it means 1 is to 1 is to 1. That is equal. From the following trial balance as on dated 31/3/2017 adjustment, prepare final account of the firm. They are asking to prepare final account. So let's see. Capital and drawings. So where we have to write capital and drawings. Capital will come to partners capital credit side, while drawings will come partners capital debit side. Then comes opening stock. Opening stock. You have learned lot of many times. Opening stock. Trading account debit side. Purchases. Trading account debit. Sales account. Trading account credit. Custom duty. Related to goods. Right? Related to goods. Weighing machine charges, or we can say tulai. So, some of the students have the doubt what does it tulai means. Last year you have seen this word tulai. Tulai means, friends, what happens when the big trucks and all, right? They want to see that whether they are overloaded or not. In that cases, iron bridges are there. So if that trucks comes on that iron bridge, it calculates the weight of that particular truck. And after that, the goods are loaded, and then they calculate again the weight of that particular, and then they deduct the total weight of the truck, that is a loaded weight truck minus total weight of the truck. Then they will get whether this truck is overloaded or not. Clear? That is weighing charges. That related to goods. If related to goods, where it comes? Trading. Then comes provident fund and contribution to provident fund. Now, provident fund means what? Provident fund is a liability related to employees, right? The provident fund is given by the employer to the employee. So it is always a liability. Now comes the contribution. And if they want to give, they have to contribute towards it. It's an expense for the firm. It's an expense for the firm. Dead stock. Dead stock means the stock which are not ready to sell in the market. The customer are not ready to purchase that product. That becomes what? Dead stock. It's also a one type of asset only. Not an asset, but we have to say it's an asset. Okay. Salary wages related to administrative expenses. Loan of Shiv, it's a liability. Interest we have to calculate. Mahajan Lago, it's a one type of taxes related to goods. Factory building, friends, this is little bit more important. Factory building, the word comes factory. Building is an asset, right? But now they are mentioning depreciation on factory building. This we have to take to trading account debit side because it is related to factory. Insurance premium, trading profit and loss, administrative. Prepaid insurance, where we have to go? You have to take into the balance sheet asset. Demurrage, related to goods, trading. Cash and bank, cash comes to asset, while bank comes to liability. Bills, both are the receivable and payables. Customers and traders, customer come to asset, that is debtors, while traders comes to liability. Professional tax, it's an expense. Profit and loss. Outstanding salary, we have to give it, related to liability. Bad debt and bad debt reserve, that is profit and loss debit side. Now friends, the first topic is adjustment. The value of closing stock is 40,000, but the market value is 20% less than book value. 20% less. This word is
More important. If less is there, we have to consider. So 40,000 20% comes to how much? 8,000. So 40,000 minus 8,000, we have to do how much? 32,000 is our entry. Number 2, goods was received 1,000, but invoice is not recorded in the purchase. That means the last sum only. We have purchased the goods of 1,000, but not recorded in the purchase. So we have to add in the purchases 1,000, and then we have to add in creditors. Creditors में भी add करना पड़ेगा. 10% interest on capital and 5% interest on drawing. Interest on capital. तो कहाँ लेके जाएंगे? P&L appropriation debit और transfer. सही है? Interest on drawing. ये कहाँ जाएगा? P&L appropriation credit फिर transfer. Provide bad debt reserve of 3,000 and 10% discount reserve on debtors. तो bad debt reserve 3,000, वो भी हम माइनस करेंगे डेटर्स में से, और 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो डेटर्स में से भी माइनस करेंगे. Shiv has withdrawn goods of 1,000 and Shankar has withdrawn 2,000 for personal use. दोनों ने विड्रॉ किया है, लेकिन गलती से देखो कहाँ लिख दिया? We have written in sales book. गलती से सेल्स बुक में लिखा. तो सेल्स बुक में से क्या करेंगे? माइनस. सेल्स में से माइनस करने के बाद क्या करेंगे? डेटर्स में से माइनस. और अलग से एंट्री देनी पड़ेगी, गुड्स जा रहा है, तो परचेज में से क्या करेंगे? माइनस, और पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड. ठीक है, 4 पॉइंट मैंने बोले. रॉन्गली रिकॉर्ड इन सेल्स बुक, ऐसा बोला है, इसलिए सेल्स में से माइनस, डेटर्स में से माइनस करेंगे, और एंट्री होना बाकी है. तो परचेस में से माइनस होगी, गुड्स गया, और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ड्राइंग्स हो रहा है, उनके बैलेंस कम होना चाहिए. लास्ट में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लॉस है, इट्स अ प्रोविजन. ठीक है, बोला हुआ है, हम देंगे. कॉलम्स देखो फ्रेंड्स. ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ शिव एंड शंकर, लीव अराउंड 15 लाइन्स, 15 लाइन्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ शिव एंड शंकर, इसमें भी आपको 15 लाइन चाहिए. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 10 लाइन, 10 लाइन. इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाया है, हम बनाएंगे. ठीक है, ऐसे करेंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है, लाइनिंग स्पेसिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो पार्टनर्स कैपिटल हम बनाएंगे. ठीक है, और लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस. पार्टनर्स कैपिटल में भी 6 से 7. ओके, चलो शुरू करते हैं. One bird is there, it has come, that's why noise is there, right? No problem. So let's see the sum now. Capital and drawings. So capital, partners capital credit, already we have discussed. So let's see now the sum. चलो कैपिटल कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में हमको लिखना है, राइट? शिव में 1 लाख लिखेंगे, क्रेडिट में लिखना है, आपको ध्यान रखना. शिव में 1 लाख और शंकर में 1,20,000, राइट? फिर ड्राइंग्स हम पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड. तो देखो ये माइनस का साइन है, माइनस ड्राइंग 10,000 और यहाँ पे भी ड्राइंग्स 20,000. ठीक है, चलो तो 2 पॉइंट हुए. फिर दिया है ओपनिंग स्टॉक, दिया है परचेज एंड सेल. चलो ओपनिंग स्टॉक रिलेटेड टू गुड्स, ये भी जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में. परचेज हम यहाँ लिखेंगे और सेल्स हम यहाँ लिखेंगे, परचेज एंड सेल्स. चलो उसके बाद है कस्टम ड्यूटी और वेइंग मशीन. कस्टम ड्यूटी हम लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में, और साथ में हम क्या लिखेंगे? वेइंग चार्जेस. ठीक है, गुड्स है ना. उसके बाद हम लिखेंगे प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड क्या होता है? लायबिलिटी, बराबर, लायबिलिटी होता है. तो लायबिलिटी है तो हमको कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में. तो बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आएंगे, वहां लिखेंगे प्रोविडेंट फंड. अगर इंटरेस्ट हो ना तो ये भी हम उसमें प्लस करेंगे, फिलहाल तो है नहीं, तो करंट लायबिलिटी में प्रोविडेंट.
फिर है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एक्सपेंस, इसलिए टू कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट। ये होने के बाद हमारा टॉपिक आगे बढ़ता है। डेट स्टॉक। डेट स्टॉक क्या है फ्रेंड्स? एसेट, राइट, करंट एसेट और सैलरी और लोन। चलो डेट स्टॉक। डेट स्टॉक हमारे लिए एसेट है। कौन सा एसेट? करंट एसेट। उसके बाद दिया हुआ है लोन ऑफ शिप। लोन ऑफ शिप ये नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें इंटरेस्ट आएगा अगर बोला है तो। हाँ सॉरी, ये शिव का ही है फॉर्म, तो इसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट? 6%। ठीक है, वो भी कर लेते। चलो ये रहा इंटरेस्ट ऑन शिप्स 900। और एक और इफेक्ट आएगा, इसको भी हम प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन शिप्स लोन। आफ्टर दैट we are going towards the new concept, शिव लोन के बाद महाजन लागू, ट्रेडिंग रिलेटेड गुड्स पता ही है। फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ जाएंगे? नॉन करंट एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, अब सुन के लिखो, ऑलरेडी अपने 4 सम हो चुके। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ लिखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट। डैमरेज ट्रेडिंग। कैश कहाँ जाएगा? एसेट में। और बैंक कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटीज। बिल्स रिसीवेबल एसेट में और बिल्स पेएबल लायबिलिटीज। कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स, कस्टमर्स कहाँ जाएगा? एसेट में और ट्रेडर्स हम लिखेंगे लायबिलिटी। प्रोफेशनल टैक्स, राइट, ट्रेडिंग सॉरी पीएनएल। आउटस्टैंडिंग सैलरी देना बाकी है, लायबिलिटी। बेटर एंड बेटर। चलो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 20% लेस, तो क्लोजिंग स्टॉक देखो 32,000। और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? यस, ये जाएगा ट्रेडिंग बैलेंस शीट के एसेट। गुड्स was received 1000 but invoice is not recorded in the purchase, यानी परचेज में रिकॉर्ड करना बाकी। तो परचेज में हम यहाँ प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज। और दूसरा इफेक्ट आएगा क्रेडिटर्स, कहाँ लिखेंगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में हम लिखेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज। बराबर, आपको लिखना पड़ेगा तभी आएगा ये, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बहुत इजी है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएंगे, वहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लिखा है तो ट्रांसफर भी होगा, तो ये ट्रांसफर होगा यहाँ पे माइनस का साइन के हिसाब से आएगा। मतलब ये ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ डेबिट में लिखा है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, और यहाँ क्रेडिट में लिखा है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। ठीक है, बैलेंस शीट देखेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा। फिर है बैड डेट रिजर्व 3000 और 10% डिस्काउंट, मतलब अपने कस्टमर्स। कस्टमर्स में हम रॉन्गली रिकॉर्डेड माइनस कर देंगे और 3000 अपना बैड डेट रिजर्व दे देंगे और डिस्काउंट। और ये दोनों को पता है ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद देखो मेन पॉइंट, शिव ने विड्रॉ किया 1000 रुपए का सामान और 2000 का सामान, लेकिन गलती से कहाँ चला गया? सेल्स। तो देखो क्या करेंगे, सेल्स में से हम क्या करेंगे? माइनस। सेल्स में माइनस करने के बाद हम एक और जगह से माइनस करेंगे, वो है अपना डेटर्स। डेटर्स में से ये रहा, डेटर्स में से माइनस। और एक्चुअल एंट्री हुआ नहीं है तो वापस ये जाएगा, कहाँ लिखना है? परचेस में से। गुड्स गया ना हमारे पास, तो परचेस में से हम क्या करेंगे? माइनस विड्रॉवल ऑफ गुड्स। और इसके बाद हम इसे कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट। कैपिटल है नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, कैपिटल के डेबिट में आपको लिखना, राइट। तो चलो, तो मेन काम हो चुका है, अब जरा टैली करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग में आओ। ट्रेडिंग में देखो सब आ चुका है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, महाजन लागू, डेमरेज। अब ये साइड डेबिट साइड का ज्यादा टोटल आ रहा है 152,200। यही टोटल हमने सामने भी लिखा है 152,200, और माइनस करे तो हमारा आंसर ये दे रहा है
43200। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 43200 और फिर इसका टोटल यहाँ करेंगे, तो इसका टोटल आएगा 60700। सामने टोटल करेंगे और माइनस आ जाएगा 59100। ये अपना आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें से हम ट्रांसफर करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन और प्लस 81,800 और प्लस माइनस 796 बराबर। फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे 39,800 39,800। ओके, फिर यहां से लॉस, हम यहां से कहां जाएंगे, हमारे अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 39,800। ये होने के बाद हमारा फाइनल आंसर पहले का आएगा, आपका फाइनल बैलेंस ये बचेगा 58700 और दूसरे का आएगा 69200, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। आ रहा है ना सबको? ठीक है। अब मेन काम आपको ही करना है, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, करना तो है। 4 सम बराबर हुए, फिक्स से ऐसे ही होगा, अभी आपको समझाएंगे, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो बुक और पेन लेके बैठना पड़ेगा, सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा। 203200 और 23200, ओके बराबर। तो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग द गुड। ठीक है, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। ओके,